بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو آج کی کہانی کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک نہایت دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ بدرو پارٹ 12۔ مقدس جعفر موس کی پراسرار قوتوں سے وہ خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ جعفر موس کسی بھی وقت دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، مگر بعد میں شاہ زمان بھی نہ بچ سکا۔ اور اب تم دونوں شاہ زمان کی برسوں پرانی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہو، میں تمہیں کبھی کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مارے غیظ غضب کے ہانپنے لگا۔ ناصر اور ساجد محبوب سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ پیش آمدہ حالات کے مطابق وہ اس کانے گورکن کی باتوں کو سمجھ رہے تھے کہ جعفر موس وہی شیطان تھا جس کی موت زمان شاہ المعروف شہید نیک شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اب اس کی بدرو اس کے خاندان کی جانی دشمن بن چکی تھی، اور یہ کانا گورکن ان کے چیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ صورتحال عین وقت پر گمبھیر ہو گئی تھی، مگر بجائے مایوس ہونے کے ناصر اور ساجد نے اس مشکل گھڑی سے نمٹنے کی ٹھان لی۔ لہٰذا ناصر نے جرأت اور ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، اے شیطان کے چیلے، تجھ پر اللہ کی مار ہو۔ تو اور تیرا شیطان جعفر موس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بات بھی ہماری تم کان کھول کر سن لو کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی ہماری آگے بھی مدد کرے گا، اور عنقریب اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ تمہارے اس شیطان آقا جعفر موس کا بھی ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو جائے گا۔ اگر تم نے ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناصر کی جرأت آمیز گفتگو اور ارادوں کی پختگی نے کانے گورکن کو ایک لمحے کے لیے پریشان سا کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے حلق سے ایک بلند قہقہ اگلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولا، اے مقدس جعفر موس کے پیروکاروں، قبر سے نکل آؤ اور میری مدد کرو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک کے آس پاس کے ماحول میں عجیب سی گونج پیدا ہونے لگی۔ ناصر گردن گھمائے ہوئے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے کچھ پراسراریت کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ ساجد نے بھی یہ پراسرار سی گونج سن لی تھی۔ وہ چلا کر ناصر سے بولا، ناصر بھائی، اس خبیث گورکن کو ختم کر دو، یہ اس بدرو کا چیلا ہے۔ اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ناصر کا دل خوف سے کے مارے اچھل کر حلق میں آن نکلا۔ نیم طلسماتی چاندنی وہ کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد کی قبروں سے مردے سالم حالت میں کھڑے آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا دہشتناک منظر اچھوں کا پتا پانی کر دیتا تھا، لیکن چونکہ ناصر نے اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا تھا۔ وہ بغور چاروں طرف سے مردوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ یہ مردے کسی نئی قبر سے شک ہو کر نہیں نکلے تھے، بلکہ جو قبریں شکستہ اور ٹوٹی ہوئی تھی ان کے اندر سے برآمد ہوئے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ استخوانی حالت میں نہ تھے، اپنے اصل رنگ و روپ میں تھے۔ البتہ ان کے جسم سفید لٹھے کے کفن میں ملبوس ضرور تھے۔ ان کے چہرے پر عام انسانوں جیسے ہی تھے، مگر آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور چہرے کسی تیز واٹ دھودیا بلب کی طرح روشن تھے۔ ان کی تعداد 10-12 کے لگ بھگ نظر آتی تھی، مگر ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ناصر نے اپنے حواس مجتمع رکھتے ہوئے اپنے دوست ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کھدال کو مضبوطی سے تھام لیا، اور پھر جیسے ہی ایک مردہ اس کے قریب آیا، اس نے کھدال کا نوکیلا آئینی پھل اس کے سینے پر رسید کر دیا۔ مردے کے حلق سے کوئی چیخ برآمد تو نہ ہوئی، البتہ وہ کھدال کا وار کھاتے ہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ناصر کو ہمت ہوئی اور اس نے ایک دوسرے مردے کا بھی یہیں حشر کر دیا۔ پھر تو جیسے ناصر پر جنون طاری ہو گیا۔ مردے اس کے کھدال کا وار کھا کر زمین بوس ہونے لگے، مگر گرتے ہی وہ اپنے ہاتھوں، پیروں اور گھٹنوں کے مدد سے گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ خون ان کے جسموں میں نہیں بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ساجد کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ وہ ساجد کی طرف پلٹا اور دھک سے رہ گیا۔ دو مردوں نے حیران و پریشان ساجد کو دبوچ لیا تھا۔ ایک مردہ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر وہ خبیث گورکن زور زور سے شیطانی قہقہے لگانے میں مصروف تھا۔ ناصر نے جوش کے مارے ایک زوردار چیخ ماری اور کھدال پکڑے ساجد کی طرف لپکا۔ اس نے سب سے پہلے ایک مردے کی پشت پر کھدال رسید کی اور اسے گردن سے پکڑ کر ساجد سے علیحدہ کر کے پرے دھکیل لیا۔ پھر یہی حشر اس نے دوسرے مردے کا بھی کیا۔ ساجد بیچارہ چیخ کر ناصر سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان پر کن لوگوں نے حملہ کر دیا، لیکن ناصر کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ تاہم اس نے خوفناک نظروں سے قریب کھڑے شیطانی قہقہے لگاتے ہوئے اس
खाने गोरकन की तरफ देखा और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए एक जोशीली चीख मारकर इसकी तरफ लपका। खाने गोरकन ने जो नासिर को कुदाल पकड़े जा रेहाना तेवरों के साथ इसकी तरफ बढ़ते देखा तो अचानक इसके कहकों को ब्रेक लग गई और परेशान सा नजर आने लगा, मगर फिर दूसरे ही लम्हे इसने वापस पलटकर भागने की कोशिश की। नासिर अब इसके सर पर पहुंच चुका था। इसने कुदाल की भरपूर ज़रब इस पर रसीद कर दी जो खबीस खाने गोरकन के दाएं कन्ने पर पेवस्त हो गई और इसके हलक से एक करी चीख बुलंद हुई और फिर वो तेवराकर गिर पड़ा। कुदाल का आईनी फल इसके दाएं कंधे में पेवस्त हो गया था और इसके जख्मी खांधे से खून जारी हो गया था। खाना गोरकन अजियतनाक कराहों के बाद अपने हाथ पांव ढीले छोड़कर ठंडा पड़ गया। फरते जोश से नासिर का चेहरा बुरी तरह टमटमा रहा था और वह जोर जोर से हाँफने भी लगा। अचानक फिर इसे साजिद की चीख सुनाई दी। वो बेख्तियार पलटकर क्या देखता है कि 3-4 मुर्दों ने इसे ज़मीन पर गिरा दिया था और इसकी रूह फना हो गई। वो खाने गोरकन को इसी हालत में छोड़कर इसकी मदद के लिए लपका और करीब पहुंचा तो अचानक ठटक कर रुक गया। तमाम मुर्दे आनन फानन अब गायब होने लगे थे। नासिर ने फौरन आगे बढ़कर साजिद को उठा दिया, सहारा दे के खड़ा कर दिया। इसके कपड़े मुर्दों की खींचातानी के बायस फट गए थे। नासिर ने अपनी सांसें बहाल की और फिर जल्दी जल्दी इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। कब्रिस्तान में अब एक बार फिर हौलनाक सन्नाटा तारी हो चुका था। अब दोनों को एक नई परेशानी ने आन घेरा था। सबसे ज़्यादा परेशानी शगुफ्ता को हो रही थी। अपने ससुर और मोहल्ले वालों की धमकी और 2 रोज़ के अंदर अंदर इस कोठी को खाली करने की मोहलत देने से वो खासी फिक्रमंद हो गई थी। इन पर मुतज़ाद इन लोगों का ये भी कहना कि रातों को अब इस अंधेरी कोठी से ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ें इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं कि हमारे खौफ के मोहल्ले वालों का जीना दोहबर हो चुका है। मोहल्ले वालों ने इन पर ही इल्ज़ाम लगाया था कि ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा था। मज़ीद ये कि अंधेरी कोठी में बैठकर ये लोग सपली उलूम और जादू टूने किया करते थे। शफकत और मोहल्ले के चंद लोग पुलिस लाने की भी धमकी दे चुके थे, लेकिन शगुफ्ता की बनिस्बत जीनत कुछ ज़्यादा परेशान ना थी। शायद इसे तसल्ली थी कि वकील खालदा तौफीक अपने पुलिस अफसर शोहर तौफीक अहमद के ज़रिए इस सूरत हाल को संभाल लेगी। चुनांचे 2 दिन तो खैरियत से गुजर गए। अलबत्ता अगले दिन जब दोनों तैयार होकर दफ्तर जाने की तैयारियां करने लगी तो मुतल्लिका थाने की पुलिस आ गई। इनके हमरा एक मोटा हवलदार भी था, यह थाना इंचार्ज था। इसने इन दोनों के बयानात लिए। जीनत और शगुफ्ता ने इन्हें बता दिया कि काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम है और अंधेरी कोठी के पुरस्कार वाक़यात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने पूरी कोठी की तलाशी ले डाली। मोहल्ले के चंद लोग भी आ गए। इनमें नासिर के मामू शफकत पेश था। वह थानेदार के कान भरने की कोशिश में दूसरे मोहल्ले वालों की तरफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। बिलाखिर जब मोटा थानेदार इस कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा जहां इस शैतानी बदरू का मतलब था तो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रोल बंद दरवाजे के जंगालू ताले पर ठोकते हुए शगुफ्ता से पूछा, इस कमरे में कौन रहता है? बेचारी शगुफ्ता परेशान सी हो गई। अलबत्ता जीनत मरहूब हुए बगैर जवाबन बोली, ये कोठी का स्टोर रूम है। थानेदार इसके चेहरे को घूरते हुए दांत पीस कर बड़बड़ाया, पर इस पर ताला क्यों पड़ा है? क्या स्टोर में कोई खजाना पोशीदा है? शफकत ने फौरन थानेदार के कार बढ़ते हुए कहा, थानेदार जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इस कमरे के अंदर तो बैठकर ये लोग सफली अमल और जादू टूने करते हैं। आप इसे अभी खुलवाने का हुक्म दें, फिर देखना मेरी बात सच साबित ना हुई तो कहना। मोहल्ले के दीगर लोगों ने भी सर हिलाकर इस बात की तायीद की। तब मोटे थानेदार ने मायने खेज अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देते हुए शगुफ्ता से इसकी चाबी मांगी तो चाबी तो थी ही नहीं, क्योंकि ठाली वाले बाबा ने इस कमरे को खोलने या इससे इस्तेमाल करने की सख्ती से ममानत कर रखी थी। चुनांचे शगुफ्ता के इस जवाब पर कि चाबी खो गई है, इसके शुबे को तकवीत मिली और यूँ मोटे थानेदार ने खड़कदार लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ये ताला तोड़ दो। थानेदार के हुक्म पर शगुफ्ता जी जान से लरज़ उठी। इसने थानेदार की बहुत मिन्नतें समझते की कि प्लीज़ इसको ना तोड़ें, लेकिन थानेदार के सिपाहियों ने अपने अफसर की हुक्म की तामील की और बिलाखिर ताला तोड़ दिया गया। इसके बाद कमरे का साल खुर्दा दरवाज़ा खोला गया तो नागवार सी बदबू का एक झोंका इनके नथनों से टकराया और सबका जी उलटने लगा। एक सिपाही ने टार्च की रोशनी अंदर फेंकी तो चमगादड़ों का एक झुंड फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। किसी को अंदर दाखिल होने की हिम्मत ना हुई थी। तब थानेदार ने खड़कदार लहजे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, अंदर जाकर तलाशी लो। हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात के मस्ताक 3 सिपाही दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए।
जिस सिपाही के हाथ में टार्च थी वो लरसते हाथों से टार्च की रोशनी के हाले को चारों तरफ गर्दिश देने लगा। अचानक एक भयानक और करीहा चेहरे पर टार्च की रोशनी पड़ी। यह बदरू का भयानक चेहरा था। बाकी दो सिपाहियों की भी इस पर नजर पड़ चुकी थी। सिपाही के हाथ से टार्च छूट कर गिर पड़ी और वो तीनों भूत भूत चिल्लाते हुए बाहर को दौड़े। इसी लम्हे अंदर से एक गुर्राती हुई खूंखार आवाज उभरी, चले जाओ यहाँ से वरना मैं सबको मार डालूंगा, चले जाओ। बस फिर क्या था, माँ सिवाय शगुफ्ता और जीनत के सब लोग खौफजदा होकर आलिम बदहवासी में वहां से भाग खड़े हुए। शगुफ्ता ने जरा हिम्मत से काम लिया और फौरन आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। नासिर और साजिद, आओ जीनत ऊपर चलें, जल्दी आओ, शगुफ्ता ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा और दोनों अपने कमरे में आ गई। बाकी सब वहां से जा चुके थे। नासिर और साजिद तेज तेज कदमों से चलते हुए एक बार फिर शहीद नेक शाह की कब्र के पास पहुंचे और नासिर ने हाँफती आवाज़ में साजिद से कहा, साजिद तुम अब जल्दी से टाली वाले बाबा का अमल दोहराना शुरू करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। साजिद ने ऐसा ही किया और फिर दिल ही दिल में इसने 3 बार वो अमल दोहराया। ज़रा ही देर बाद नासिर ने देखा कि शहीद नेक शाह की कब्र के ऊपर मलजगे से धुएं के मरगोले उठने लगे और फिर एक ख़ास हद तक उठने के बाद वो मरगोले ठहर गए। इसके बाद एक मुलायमत भरी आवाज़ उभरी, शाबाश, तुम दोनों बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे तुम दोनों का ही इंतज़ार था। साजिद ने हिम्मत करके कहा, ए नेक रूह, हमारी मदद कर। जिस शैतानी मखलूक को तूने कई बरस पहले हलाक किया था, आज जिसकी बदरू हमारे ख़ानदान की दुश्मन बन चुकी है। इसने हमारे माँ बाप की जान भी ले ली और मुझे भी नाबीना कर डाला और अब भी हमारे पीछे नहीं छोड़ रही। ऐ नेक बुजुर्ग, ढाली वाले बाबा की नसीहत पर हम यहाँ आपसे मदद लेने आए हैं। खुदारा हमारी मदद करे, वरना वो बदरू हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मदद सिर्फ अल्लाह करेगा, हम इसका वसीला बनेंगे, मगर हिम्मत तुम्हें दिखाना होगी। हम तैयार हैं ए नेक रूह, मगर आप हमें बताएं तो सही कि आखिर इस बदरू का खात्मा किस तरह मुमकिन है। हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा, नेक रूह बोली, क्योंकि सिर्फ मैं ही इस शैतान के बदरू को ख़त्म करने का तरीका जानता हूँ। सुनो। नासिर और साजिद हमतन गोश हो गए। शहीद नेक शाह की रूह ने बताना शुरू किया, सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम मुझे बार बार हजरात के अमल से नहीं बुला सकते। ये हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। अगर तुमने दोबारा हमें बुलाने के लिए हजरात का अमल किया तो तुम्हें नुकसान होगा, इसलिए जो मैं कहूँ इसे ध्यान से सुनो। अब दूसरी और अहम बात यह है कि हम सब जानते हैं कि शैतान जाफर मूस की बदरू हमारे ख़ानदान की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि वो शैतान का चीला था जो सफली उलूम के ज़रिए तेज़ी से अपना एक मखसूस ग्रोह तश्कील दे रहा था, जिसका नाम इसने आगरम रखा था, यानी शैतान के पुजारी। वो काना गोरकन भी इसी आगरम ग्रोह से ताल्लुक़ रखता था। तुम्हें कदम कदम पर इस शैतानी ग्रोह के लोगों का सामना करना होगा जो जाफर मूस को दोबारा शैतानी क़ुव्वतें दिलाने के लिए कोशा हैं। जाफर मूस को मैंने हलाक किया था, अब वो किसी जिस्मानी तौर पर जिंदा नहीं हो सकता, मगर बदकिस्मती से इसकी बदरू अपने काले करतूतों के जरिए आम लोगों के लिए वबाल जान बन सकती है। ठाली वाले बाबा के मशवरे पर तुमने सख्ती से अमल करना होगा और इस अंधेरी कोठी को गैर आबाद नहीं छोड़ना, क्योंकि वहाँ जाफर मूस का नापाक मदफन है। जाफर मूस की बदरू को सबसे पहले अपने इस मदफन की तरफ लौटने पर मजबूर करना होगा, इसके बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जाफर मूस की बदरू को किस तरह अपने मदफन की तरफ लौटने पर मजबूर करना होगा, ये मैं तुमको बताता हूँ। साजिद और नासिर बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहे थे। तुम्हें यहाँ से एक तवील मुसाफत तय करके ढोकपुरा नामी एक बस्ती की तरफ जाना होगा, जो बहरान के शुमाली मगरब में 200 मील की मुसाफत पर है। जाफर मूस वहीं का बाशिंदा था। किसी ज़माने में यहाँ एक खुदपरस्त कौम आबाद थी जो सांसी कहलाती थी। ये कौम सफली इल्म की माहिर समझी जाती थी। जाफर मूस भी इन्हीं मरदूद लोगों में से था। अगरचे अब इस कौम का खात्मा हो चुका है और अब वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों कौमियत के लोग आबाद हैं, लेकिन अब इस सांसी कौम के चंद गिने चुने लोग वहाँ मौजूद हैं जो बज़ाहिर खुद को हिंदू कहते हैं, मगर इनका हिंदू मज़हब कबूल कर लिया और कुछ हमारे आबा व अजदाद की दीनी तबलीग के बाद सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। मगर चंद कट्टर सांसी आज भी जाफर मूस के पैरोकार हैं और वो खुफिया तौर पर जादू टोना करते रहते हैं। जाफर मूस की हलाकत के बाद जो आगरम नामी ग्रोह वजूद में आया, वो सांसी कौम के इन बचे कुचे लोगों के साथ मिल गया, मगर अब सांसी कौम को आगरम पर फौकियत हासिल है, क्योंकि अब वही जाफर मूस की शैतानी क़ुव्वतों को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशा है। खाना गोरकन भी दर हकीकत आगरम ही के ग्रोह से ताल्लुक़ रखता था और सांसियों के इमाम पर ही इस कब्रिस्तान में रहता था ताकि वो तुम लोगों को मुझसे मिलने ला दे। इसी तरह अब सांसी और आगरम दोनों मुश्तरका तौर पर अपने शैतानी पैरोकार जाफर मूस के मफादात के लिए कोशा हैं। ढोकपुरा इस बस्ती का नया नाम है, पहले कुछ और होता था।
इन लोगों ने वहाँ वीरान जंगल में चमाई नामी एक मंदिर के तहखाने में अपनी इबादतगाह बना रखी है और वही जाफर मूस का बुत भी बना रखा है। वो रात गए तक वहाँ छाप अलाप और जादू टोना करते रहते हैं। इनका सबसे अहम मकसद यही है कि जाफर मूस की बदरू इस बुत के अंदर समा जाए और ख़ुद जाफर मूस की बदरू भी यही चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो जाफर मूस से मुकाबला करना तुम लोगों के लिए भी ख़तरा बन सकता है। लिहाजा तुमने चमाई के इस पुराने मंदिर में दाखिल होकर इसके बुत को पाश पाश करना होगा, क्योंकि जाफर मूस की बदरू के लिए बस में ये नहीं है कि वो ताक़यामत इसी तरह सरगर्दा मारा मारा फिरता रहे, फिर वो खुद ही अपने मतवन की तरफ लौट जाएगा। अब तुमने मेरी बातों को गौर से सुन ली, कोई सवाल है तो करो, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। शहीद नेक शाह की रूह इतना कहकर खामोश हो गई। साजिद ने पूछा, ए नेक रूह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसा ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अंधेरी कोठी जहाँ इस बदरू का मतफन है अगर वो हमसे छीन ली जाए या इसे लोग नज़र आतिश कर डालें तो हमें इस सूरत में क्या करना होगा? क्योंकि वहाँ मोहल्ले के कुछ लोगों को हम पर शुबा होने लगा है कि हम अंधेरी कोठी में बैठकर जादू टूना करते हैं। साजिद के सवाल पर शहीद नेक शाह की रूह ने कहा, ऐसा मुमकिन है क्योंकि जाफर मूस की बदरू भी यही चाहती है कि इसके मतफन का नामो निशान तक मिट जाए और वो इसी तरह भटकती रहे और मासूम और बेगुनाह इंसानों को सताती रहे। इसलिए तुम लोगों को इस अंधेरी कोठी की भी हिफाजत करना होगी। बस अब मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो और तुम्हारी इस नेक मकसद में मदद फरमाए। इसके बाद शहीद नेक शाह की खबर पर मुल्हिक वो मंजगा सा धुआं धीरे धीरे ओझल होने लगा, हत्ता कि मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। चलो अच्छा हुआ हमारी जान छूटी, अब ये लोग हमें तंग नहीं करेंगे। इन सब लोगों की जाती जीनत ने एक अमानत भरी सांस लेकर कहा। शगुफ्ता इसके बरअक्स मुतफिक्र होकर बोली, जीनत ये अच्छा नहीं हुआ। इस तरह लोगों को अपनी इस बात का पुख्ता यकीन हो जाएगा कि हम इस कोठी में जादू टोना करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बदरू ने जानबूझकर अपनी खौफनाक झलक इन्हें दिखाई थी ताकि हमें यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। शगुफ्ता की बात जीनत को भी माकूल महसूस हुई। यही सबब था कि इसके चेहरे पर तशवीश के आसार उभर आए और फिर वो इसी लहजे में बोली, तो फिर अब क्या होगा? देखें क्या होता है। इन लोगों को तो मौका हाथ आना था, सो आ गया। अब ये लोग ज़रूर कोई गुल खिलाएंगे, बल्कि मुझे डर है कि कहीं मोहल्ले वाले मुश्तइल होकर इस कोठी को ही आग ना लगा दें। शगुफ्ता हद दर्जे परेशान हो गई। जीनत ने इसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, हौसला रखो शगुफ्ता, मैं अपनी सहेली एडवोकेट खालदा तौफीक से बात करूंगी। पहले देखें तो सही होता क्या है। वो दिन खैरियत से गुजर गया। अगले दिन सुबह जब वो दोनों दफ्तर जाने की तैयारी करने लगी तो मोहल्ले के चंद लोगों ने, जिनमें नासिर का मामू शफकत पेश था, इन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इन्होंने 2 दिनों में कोठी खाली ना की तो इस कोठी को आग लगा दी जाएगी। ये सुनकर दोनों दफ्तर जाने के बजाय सीधी एडवोकेट खालदा के पास पहुंची। इसने इन्हें तसल्ली दी कि मोहल्ले वालों को किसी भी इमला को नजर आतिश करने का कोई हक नहीं पहुंचता, ये सरीहन जुर्म है। साथ ही इन्होंने ये भी कह डाला कि वो अपने शोहर इंस्पेक्टर तौफीक अहमद के ज़रिए मुतल्लिका थाने के इंचार्ज पर भी दबाव डलवाएगी और पुलिस के चंद नौजवानों को भी अंधेरी कोठी की हिफाजत के लिए वहाँ मुतय्यन कर दिया जाएगा। इसकी बात सुनकर जीनत और शगुफ्ता को कदर तसल्ली हो गई और फिर यही हुआ। आनन फानन अंधेरी कोठी के गिर्द पुलिस के चंद जवान मुतय्यन कर दिए गए। साथ मोहल्ले वालों को भी सख्ती से मुतनब्बा कर दिया गया कि अगर इन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो सबको अंदर कर दिया जाएगा। मोहल्ले वाले डर तो गए, मगर चंद शरपसंद बशमूल शफकत ने दिल में तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो इस मनहूस कोठी को नजर आतिश करके ही रहेंगे। ताहम बज़ाहिर उन्होंने भी चुप साध ली। वक्त अंदेशों और वसवसों के अनदेखे साए तले गुजरने लगा। ये इससे तीसरे रोज़ का जिक्र था। अंधेरी कोठी के बाहर मुतय्यन 4 पुलिस वालों की यहाँ ड्यूटी 8 घंटों के हिसाब से 3 शिफ्टों में लगाई गई थी। बिलखसूस जो 4 पुलिस वाले रात में ड्यूटी देते थे, इन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयत थी। वो सख्त बेजार हो चुके थे। रात के 12 बजे का अमल था। हर सू गहरा सन्नाटा तारी था। सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही थी। तारीख फिजा पर गहरी कोहर छाई हुई थी। महज चंद गज के फासले से ज़्यादा कुछ दिखाई ना देता था। अंधेरी कोठी पर गहरा सकवत तारी था। इसके गेट के दोनों संगीत सतूनों पर दूधिया ग्लोब रोशन थे। पुलिस वालों के लिए कोठी के अंदर गेट के पास ही एक छोटा सा गार्ड कैबिन बना दिया गया था। इन चारों ने आपस में ये शबीना ड्यूटी बांट ली थी। शुरू के 4 घंटे पहले 2 सिपाही गेट के बाहर गश्त करते थे, जबकि बाकी 2 अंदर गार्ड कैबिन में सोते रहते थे। 4 घंटे पूरे करने के बाद इनके साथी इन्हें जगाकर खुद सो जाते थे। चुनांचा इस वक्त भी इसी बाहमी रजामंदी के मुताबिक 2 सिपाही अंदर कैबिन में सो रहे थे और बाकी 2
गेट के बाहर पहरा दे रहे थे। दोनों सिपाहियों ने मौसम की मुनासबत से गर्म शाल ओढ़ रखी थी। एक के हाथ में टार्च थी। दोनों बाहर सख्त ठठरती सर्दी में गश्त कर रहे थे। यार खादिर, सिगरेट तो पिला, बड़ी सर्दी है। एक सिपाही ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए अपने दूसरे साथी खादिर बख्श से कहा। वो चिढ़कर बोला, तुझे पता भी है रात की ड्यूटी सख्त होती है, अपना कोटा तुझे लाना चाहिए था। पहला वाला दोस्ताना मुस्कुराहट से बोला, अच्छा यार भूल गया, उधार सही, कल लाऊंगा तो दे दूंगा मैं, बस ला इधर कर। मजबूरन खादिर बख्श ने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल कर एक सिगरेट इसे थमाई और दूसरी अपने होंठों में दबा ली। दूसरे ने दिया सलाई जलाई। दोनों लंबे लंबे कश लेने लगे। खादिर बख्श के साथी का नाम नवाज था। वो बोला, खादरे तुझे पता है ये कोठी असेवी है? हाँ मालूम है, ये ऐसे ही झूठी कहानी है ताकि इसका मालिक औने पौने दामों इसे फरोख्त कर दे। कीमत गिराने के हथकंडे बहुत पुराने हो चुके हैं। खादिर बख्श मुंह बसूर कर बोला। नवाज ने कहा, ये मैं सच कह रहा हूँ खादिर, तुझे तो यार बड़ा डर लग रहा है। अचानक इनकी समातों से एक आवाज़ टकराई, ठक ठक ठक। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई पुख्ता ज़मीन पर लाठी ठेकता हुआ चला आ रहा हो। दोनों ने चौंक कर सामने देखा। वहाँ गहरी धुंध के सिवा कुछ ना था। ये आवाज़ कैसी है? नवाज ने कहा, शायद कोई चौकीदार है। खादिर बख्श ने घूर कर सामने छाई हुई दबीस कोहर में देखने की कोशिश करते हुए कहा। तभी अचानक दोनों को धुंध में एक इंसान का धुंधला धुंधला सा ह्योला नजर आया। इसके दाएं हाथ में लाठी थी जिसे वो पुख्ता सड़क पर मारते हुए धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था। दोनों दम बखुद से इसे देखने लगे। फिर जब वो इंसानी ह्योला धुंध की दबीस से पूरी तरह निकल आया तो वो दोनों ठटके। इसका सर नज़र नहीं आ रहा था। पहले वो यही समझे कि शायद धुंध की वजह से ऐसा है, मगर जब वो लाठी बदस शख्स इनके करीब आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने हमारे दहशत की चीखें निकल गई और वो थर थर कांपने लगे। इस शख्स का सर गायब था। नवाज तो भाग खड़ा हुआ, जबकि खादिर बख्श ने ज़रा हिम्मत से काम लेकर अपनी राइफल इसके सर कटे इंसान पर तान ली। सर कटा बड़ी फुर्ती के साथ इसी से तान खड़ा हुआ जिस रुख पर इसका साथी नवाज दहशत से ज़दा होकर दौड़ा था। खादिर बख्श ने भी घबरा कर अपना रुख मोड़ा और सर कटे पर गोली चला दी। रात के सन्नाटे में एक इंसानी चीख उभरी। खादिर बख्श यही समझा कि सरकटे को गोली लग गई है, मगर गोली सरकटे के जिस्म से पार होकर दौड़ते हुए सिपाही नवाज की कमर में पेवस्त हो गई थी। वो तिवरा कर गिरा था। सरकटा जो दरहकीकत जाफर मूस की बदरू थी, अपना गुल खिलाने के बाद गायब हो चुकी थी। खादिर बख्श के जब होश ठिकाने आए तो इसके हाथ पांव फूल गए। वो बदहवासी की आलम में दौड़ता हुआ अपने ज़मीन बोस पड़े साथी नवाज के करीब पहुंचा। इस असना में गोली चलने के धमाके से बाकी दो सिपाही भी जाग चुके थे। नवाज बेसुध पड़ा था। इसकी कमर से खून बहे जा रहा था। वो मर चुका था। कब्रिस्तान में हू का आलम था। शहीद नेक शाह की बातें सुनने के बाद नासिर और साजिद के चेहरे पर जोश मुतरशा था। दोनों मशरिक की सिमत फूक उठने वाली थी। दूर मशरिक के सिमत फूक उठने वाली थी। दोनों ने ज़रा देर रुक कर आपस में सलाह मशवरा किया और फिर आबादी की तरफ बढ़ गए। इन्होंने यही तय किया था कि सांसियों और आगरम वालों से जंग किए बगैर सबसे पहले जमाई के मंदिर में मौजूद जाफर मूस के बुत को पाश पाश करेंगे। बसूरत दीगर अगर इन्हें सांसियों और आगरम वालों से जंग भी लड़ना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इनके साथ एक मुश्किल ये थी कि साजिद नाबीना था, जबकि जाफर मूस के बुत को सिर्फ साजिद ही पाश पाश कर सकता था, क्योंकि वो शहीद नेक शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। बहरतौर दोनों अल्लाह का नाम लेकर आबादी की तरफ चल पड़े। हाँ, इन्होंने खेतों में काम करते हुए एक मकामी शख्स से ढोकपुरा के बारे में मालूमात हासिल की कि वो किस तरफ है। नीज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सवारी मिल सकती है। शख्स ने बताया कि ज़रा देर बाद शाहपुर से एक लारी आएगी जो भेरा से होती हुई सुखपुर जाएगी। वहाँ से ढोकपुरा 90 किलोमीटर के फासले पर है और वहाँ से इन्हें सीधी ढोकपुरा जाने के लिए एक और सवारी मिल जाएगी। दोनों को भूख प्यास भी सता रही थी। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले होटल का पता पूछा और एक छप्परनुमा होटल में पहुंचकर शिकम सेरी की। शाहपुर से आने वाली लारी भी वहीं रुकती थी। ज़रा देर बाद लारी आ गई। दोनों इसमें सवार हो गए। 15 मिनट बाद लारी सुखपुल के करीब की तरफ रवाना हो गई। मज़ाफ़ाती और देहाती रास्तों पर सफ़र करती हुई लारी कई छोटे छोटे गाँव और बस्तियों में रुकती रही और रात गए इन्हें सुखपुल उतरना नसीब हुआ। सुखपुल एक दरिया पर था जिस पार करने के बाद आबादी शुरू हो जाती थी। गालिबन इसी वजह से इस गांव का नाम सुखपुल रखा गया था। साजिद और नासिर लारी से उतरे तो इन्होंने सुख का सांस लिया, क्योंकि ये एक अच्छा खासा बड़ा दही इलाका था। यहाँ इन्हें एक सराय भी मिल गई। रात इन्होंने वहीं बसर करने का सोचा और सराय में दाखिल हो गए। सराय क्या थी? एक छोटा मिट्टी की दीवारों वाला 2 मंजिला मकान था। सराय के मालिक की एक मोटी सी हिंदू और सराय की मालिक एक मोटी सी हिंदू औरत थी। सुखपुल में मुसलमानों और हिंदुओं की भी खासी तादाद थी। कुछ घर सिखों के भी थे। सराय की मालिका का नाम कलावती था। वो एक स्याह रंग की 1.5 उम्र औरत थी।
इस औरत के अलावा एक जवान लड़की और मर्द भी था। बाद में पता चला कि जवान लड़की रूपा इसकी बेटी और जवान मर्द रूपा का शौहर यानी कलावती का दामाद था। तीनों ने इस सराय का नस्ब व नस्क संभाला हुआ था। बाकी एक नौकर भी था, इसका नाम अब्दुल था, वो एक जवान मर्द था। नासिर और साजिद को यहाँ अजीब सी वीरानी और वहशत का एहसास होने लगा। इन्हें एक कमरा दे दिया गया। कमरा छोटा था मगर दोनों के लिए रात गुजारने के लिए काफ़ी था। 2 झुलंगा सी चारपाइयों पर मैले कुचैले बिस्तर बिछाए गए थे। लगता है हमारे अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं ठहरा हुआ। नासिर ने कहा, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी है। साजिद ने ख्याल जाहिर किया। ज़रा देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, नासिर ने कहा। सराय का मुलाजिम अब्दुल अंदर दाखिल हुआ और बगौर दोनों के चेहरों का जायजा लेते उस पाट लहजे में बोला, कुछ खाने पीने के लिए लाऊं? क्या है खाने में? नासिर ने पूछा। तरकारी है, वो बोला। ठीक है ले आओ, नासिर ने कहा। तो अब्दुल चंद सानिया वहाँ खड़ा रहा। नासिर को ऐसा लगा जैसे वो कुछ बेचैन सा था और उससे कुछ कहना चाहता था। क्या बात है? बिलाखिर नासिर ने पूछ ही लिया। तुम लोग मुसलमान हो? अब्दुल ने होली से पूछा और बोलने का अंदाज सरगोशाना था। हाँ, नासिर ने इसके बाद में सर हिला दिया। मुख्तसरन अब्दुल तो हिलाते हुए मुख्तसरन कहा तो अब्दुल खामोशी से लौट गया। ज़रा देर बाद सराय की मालिका कलावती अंदर आई। इसने मैली से साड़ी बांध रखी थी। इसकी आंखें मोटी मोटी और उबली हुई थी और दोनों के चेहरों को बगौर देखते हुए बोली, भोजन के अलग से पैसे देने होंगे। नासिर को नागवार गुजरा था। हाँ, वो जब्त करके बोला, हाँ दे देंगे। पैसे कितने? 50 रुपये, वो औरत बोली। नासिर ने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। कलावती ने नोट लेकर अपने गिरबान में अड़ास लिया और कमरे से निकल गई। ज़रा देर बाद अब्दुल खाने पीने की ट्रे उठा लाए। खाना खाने के बाद अब्दुल दोबारा खाने बर्तन समेटते अंदर दाखिल हुआ और फिर जब लौटने लगा तो रुक गया। फिर इनकी तरफ मुड़ा। नासिर की नज़रें इसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो अजीब से लहजे में बोला, खुदा करे तुम्हारी रात खैरियत से गुजर जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? नासिर इसकी बात पर चौंक पड़ा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। वो ये बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। नासिर और साजिद बेचैन से हो गए। क्या कहना चाहता था आखिर ये? साजिद ने गुमगु से लहजे में नासिर से कहा, पता नहीं, ना जाने क्या बात है, कमबख्त अधूरी बात करके हमें बिला वजह परेशान कर गया। नासिर ने इसे कोसते हुए कहा, अल्लाह मालिक है नासिर भाई, तुम दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर सो जाओ। सुबह तड़के चले तो जाना है, हम खामखा क्यों परेशान होते फिरें? साजिद ने कहा। नासिर ने उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। फिर दोनों चारपाइयों पर दराज हो गए। थकन के बायस दोनों का ही नींद से बुरा हाल था, इसलिए चारपाई पर लेटते ही सो गए। अलबत्ता कमरे की बत्ती इन्होंने नहीं बुझाई थी। रात के जाने कौन सा पहर था। अचानक नासिर की आंख खुली। इसका दिल जाने क्यों तेज तेज धड़क रहा था। वो फौरन उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती रोशन थी। नासिर की समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी आंख किस वजह से खुली है। इसने बराबर वाली चारपाई पर साजिद को गहरी नींद में सोए हुए पाया। अचानक दरवाजे के बाहर हल्की आहट से उभरी। नासिर बुरी तरह ठटक गया। बगौर आंखें सुखेर कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। दरवाज़ा हिलने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई बाहर से दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश कर रहा है। कौन है? नासिर ने वहीं चारपाई पर बैठे बैठे कदरे बुलंद आवाज़ से कहा तो अचानक दरवाज़ा हिलना बंद हो